خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل رضوان ظہیر پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھوں کو میں مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نیو ایڈمیشن کے بارے میں بتاؤں گا۔ یونیورسٹی نے آج اپنے ویب سائٹ پر سیشن 2022-23 میں پارٹ ٹائم یا سیلف فائنینس پی ایچ ڈی ایڈمیشن کے بارے میں اپڈیٹ دیا ہے، جو کہ یہ سیشن 2022-23 کہلائے گا۔ ونٹر سیشن، بعض دفعہ اسے جنوری سیشن بھی کہتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں ہم بالکل ڈیٹیل سے آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ یونیورسٹی نے اس نوٹیفیکیشن میں کیا کیا کہا ہے، ایڈمیشن کا شیڈیول کیا ہوگا، ساتھ ہی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کیا ہوں گے کینڈیڈیٹ کے لیے، ایڈمیشن کے لیے فارم اپلائی کا رجسٹریشن یا اپلیکیشن فی پیمنٹ کیسے کریں گے، ان چیزوں کو، ویکنسیز آف پی ایچ ڈی یعنی کس کورس میں کس سبجیکٹ میں کتنی ویکنسیز ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، پھر آن لائن فارم کیسے رجسٹریشن کرنا ہے، اور امپورٹنٹ ڈیٹ یا امپورٹنٹ انفارمیشنز یعنی نیو ایڈمیشن سے متعلق تمام جانکاری آپ کو ہم اس ویڈیو کے ذریعے دیں گے۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا، کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کنفیوژن ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے رضوان ظہیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ہم اصل کنٹینٹ پہ آنے سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں کہ ویسے کینڈیڈیٹ جو اس سال مانو سے ڈی ایل ایڈ کی تیاری کرنے والے ہیں تو ان کے لیے پچھلے 8 سالوں کا کوشچن آنسر کے ساتھ اویلیبل ہے، اور پھر ایکسٹرا پریکٹس سیٹ یا مٹیریل سیٹ انٹرنس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے، جس میں جنرل نالج، اردو، انگلش ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ اور مینٹل ایبیلٹی شامل ہوں گے۔ یہ سبھی چیزیں پی ڈی ایف میں آپ کو پرووائڈ کرایا جائے گا۔ اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو بی ایڈ والوں کے لیے بھی پچھلے 8 سالوں کا 2015 سے لے کر 22 تک مانو میں جو بھی انٹرنس ٹیسٹ ہوئے ہیں ان سبھی کے پریویس ایئر کوشچن آنسر کے ساتھ اور ایکسٹرا پریکٹس سیٹ پرووائڈ کرایا جائے گا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر یہاں دیا ہوا ہے، آپ اس پر کانٹیکٹ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایکسٹرا پریکٹس سیٹ جو ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامن سیکشن یعنی جنرل نالج، اردو، انگلش ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ اور مینٹل ایبیلٹی کے سبھی سبجیکٹ کے کوشچنس ہوں گے، اور مین سبجیکٹ جو بی ایڈ میں ہے تو اس میں اردو اور سوشل سائنس کا ہوگا، مطلب کہ سائنس کا الگ سے نہیں ملے گا، پریویس ایئر کوشچن آنسر کے ساتھ تو ملے گا، الگ سے انٹرنس کی تیاری کرنے کے لیے سائنس والوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کر لیں کچھ اور کورسز کے تو پی ایچ ڈی میں مانو میں جتنے بھی سبجیکٹ سے پی ایچ ڈی ہوتی ہے سبھی سبجیکٹ ایم بی اے، ایم سی اے، ایم ایڈ یا پولیٹیکنک، ان سبھی کورسز کے پریویس ایئر کوشچن حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ چلیے باقی اور مزید جانکاری کے لیے بھی مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کبھی بھی آپ ہمیں میسیج یا کال کریں تو اس کے لیے دن میں 3 سے 6 بجے کے درمیان ہی کال یا میسیج کریں تو آپ کو اس کا رسپانس ملے گا۔ ادرس ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ کال نہ ریسیو کر پائیں یا آپ کو پریشانی اٹھانا پڑے، خیر وہ الگ بات تھی۔ اب ہم سیدھے کنٹینٹ پر آ جاتے ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے مانو کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ مانو میں کتنے اسکول آف اسٹڈیز ہیں، وہ آپ کے 7 ہیں، جن میں سے کل 19 ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ٹوٹل پروگرامز کی بات کریں تو مانو میں 71 کورسز چل رہے ہیں ریگولر موڈ سے، جس میں پی ایچ ڈی بھی شامل ہے، اور اس کے آف کیمپسز ہندوستان کی 11 الگ الگ اسٹیٹ میں واقع ہے۔ ایک اور بڑی خوشخبری ہے کہ نیک کی گریڈنگ نے ابھی مانو کو اے پلس گریڈنگ دیا ہے۔ اس سے پہلے صرف اے گریڈ تھا، لیکن اب مانو اے پلس کیٹیگری میں آ گیا ہے، جو کہ نیک کے ہائیسٹ میں سے ہی ایک آتا ہے۔ سب سے اے پلس پلس سب سے ہائیسٹ ہے اور سیکنڈ اس سے اے پلس آتا ہے، تو مانو کا رتبہ پہلے سے اور بھی اب بڑھ گیا ہے۔ یہ 2022 کے دسمبر میں ریٹنگ آیا ہے، جو کہ 2022 سے 27 تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سب سے اہم چیز جو اس ویڈیو میں کہ ٹائم ٹیبل یا شیڈیول کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے پارٹ ٹائم
टाइमलाइन फॉर पीएचडी पार्ट टाइम प्रोग्राम या स्पॉन्सर्ड या सेल्फ फाइनेंसिंग मोड। पार्ट टाइम या में स्पॉन्सर्ड या सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे कोर्स हैं जिसका जो भी खर्च होगा वो कैंडिडेट को या स्टूडेंट को खुद उठाना होगा। उसके लिए यूनिवर्सिटी आपसे जो भी फुल्ली चार्ज होता है वो आपसे पे करेंगे। और दूसरी चीज़ ये आपका पार्ट टाइम होगा, मतलब कि आपका रेगुलर मोड का नहीं होगा, बल्कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं ये लोग सिर्फ उसी को करेंगे। नोटिफिकेशन का डेट आपका 27 जनवरी है, जो कि आज का डेट, आज ही वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट आप 17 फरवरी है, 17 फरवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 28 फरवरी को जारी होगा, क्योंकि इसमें एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको पहले एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिसर्च एडमिशन टेस्ट, यानी जो आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट 6 मार्च को होगा। आंसर की 6 मार्च को ही शाम में एग्ज़ाम जारी कर दिया जाएगा, उसमें आप चैलेंज या क्लेम कर सकते हैं, जो कि 7 से 8 तक का टाइमिंग है। फाइनल आंसर की 10 मार्च को आएगा, रिज़ल्ट 15 मार्च को आ जाएगा। बहुत फास्ट सर्विस है, और ये जो डेट दिया हुआ है ये टेंटेटिव है, इसमें कोई बदलाव होने का चांस नहीं है, ऑलमोस्ट इसी डेट पे सारी चीज़ें हो जाती है। और ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट का 17 से 18 मार्च के बीच होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट 20 मार्च को आ जाएगा। और इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं तो ये आपका 25 से 26 मार्च के बीच इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो लोग भी सिलेक्ट होंगे उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा, और 30 मार्च तक उन्हें पेमेंट करके 5 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये शेड्यूल पूरा था, आप इसे देख लीजिए। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है कैंडिडेट के लिए, उनका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में सबसे पहली चीज़ पर हम आ जाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उन्हें होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ उर्दू एज ए लैंग्वेज, मतलब आप जानते हैं कि मानो में किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए एक चीज़ सबसे ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने अब तक के जो भी पढ़ाई की उनमें से किसी भी एक लेवल पर उर्दू, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट मदरसे के जितने भी कोर्सेज जो मानो से अप्रूव्ड है उनमें से किसी मदरसे से उसने कोर्स किया होना चाहिए। या फिर एक और यहाँ देख रही, इसमें पार्ट टाइम वाले में एक और ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि अगर आपके पास उर्दू नहीं है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक कंडीशन ये बताया जाएगा कि पूरे कोर्स के दौरान 2 क्रेडिट का उर्दू एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा अलग से। जो लोग उर्दू पढ़े होंगे उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो लोग उर्दू नहीं पढ़े हैं उनको 2 क्रेडिट का उर्दू एक कोर्स लेना कंपलसरी होगा, वो उसमें पास करेंगे तभी उनका डिग्री अवार्ड होगा। मार्कशीट ऑफ 10th या उसके इक्विवेलेंट का जो भी है, फिर आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस एरिया में अप्लाई कर रहे हैं उसके में आपका होना चाहिए उसका मार्कशीट। ट्रांसफ़र, कैरेक्टर, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए। और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट आता है उस फॉर्मेट में आपका SC ST OBC EWS वगैरह का कोई जो भी अप्लाई करते हैं वो आपका होना चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस सर्विस सर्टिफिकेट, मतलब आप जानते हैं कि पार्ट टाइम कोर्स कोई कॉमन कैंडिडेट नहीं कर सकता है, बल्कि ऑलरेडी जो जॉब में है, जो एम्प्लॉय हैं वही कर सकते हैं, तो उसका भी आपको एक्सपीरियंस का या सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा। और आप जॉब में है तो फिर आप एडमिशन के PhD में आ रहे हैं तो NOC भी आपको देना ही होगा, और ये ज़रूरी है। ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं, आप इसे स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। एक और अहम चीज़ के फॉर्म अप्लाई करने में फ़ी पेमेंट कितना लगेगा। फ़ी पेमेंट आपका पूरे 1500 रुपये लगेगा ऑनलाइन फ़ी पेमेंट में, जिसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी दोनों शामिल है। कैसे आप अप्लाई करना है उसके लिए ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। ये लिंक नीचे मैं कमेंट बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, वहाँ आप इससे जा सकते हैं। उसमें पूरा प्रोसेस यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट खुलेगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन पर जाना। रजिस्ट्रेशन में आपको नाम लिखना है, पहला नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मीन्स कि आपका नाम रिजवान ज़हीर है तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिजवान, मिडिल में कुछ भी नहीं क्योंकि 2 ही है इसमें, ज़हीर। अगर आपका नाम 3 वाला है, जैसे MD रिजवान ज़हीर अगर आपका नाम हो जाता तो MD आपका फर्स्ट में आता, रिजवान आपका मिडिल में आता, ज़हीर आपका लास्ट में आता। चलिए, उसके बाद
वालिदा का नाम यानी मदर्स का नाम, माँ का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, जीन्स यानी किस कैटेगरी से आप, जीन्स में क्या है, मेल है फीमेल है, तारीख़ पैदाइश डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसको सेलेक्ट करके उसका जवाब देना है, कैप्चा डाल के रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर दोनों पर एक मैसेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। उस पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन को दोबारा से फिर वेबसाइट पर आकर या मेल पर आपको उसका लिंक भी आएगा, उस लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे तो ये आएगा लॉगिन का। अब उसी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मोबाइल या मेल पर आया है उसको लिखेंगे, फिर पासवर्ड को लिखेंगे, लॉगिन कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे फिर आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको अपना पूरा कंप्लीट डिटेल्स 4 अलग अलग सेक्शन में देना पड़ेगा। वो कौन कौन सा सेक्शन है? सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पर्सनल डिटेल्स है, एड्रेस है, गार्जियन डिटेल्स है और फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके यहाँ पे पहले से शो करेगा जो आपके मोबाइल पर आया होगा। फिर नेम में भी यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इनमें ये चीज़ें तो पहले ही आप डाल चुके थे। अगला जो है अब आपका इसमें ये आएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, आपकी कौमियत नेशनलिटी क्या है, उस नेशनलियत को डालना है। फिर किस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे लिखना है। यहाँ एक और ऑप्शन आ रहा है कि आप किस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, उस स्टेट का नाम लिख के आपके कास्ट का नाम क्या है वो आपको लिख देना है। फिर क्या आप माजूर है, PWD है, यस या नो, जो भी हो, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, इलाका, आधार कार्ड, अपने मानू में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो आप अपना रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद वो अपने ही आपका नाम मैच कर लेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे यहाँ पर नो कर देंगे। मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है वो डाल देंगे। मादरी यानी मदर टंग, मातृभाषा आपकी क्या है वो लिखेंगे। शनाख्ती निशान, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको लिखना है। मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो फिर अब उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा गार्जियन डिटेल्स का, नेक्स्ट स्टेप आपका वो आ गया। फोटो एंड सिग्नेचर गार्जियन डिटेल्स का आएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा, उस पर लिख दीजिएगा। फिर आपका गार्जियन डिटेल्स का अब फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे। फोटो पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर पर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करेंगे। बाकी आपने जो भी अपना इन्फॉर्मेशन दिया था वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे विजिबल है, दिखाई दे रहा है। आप उसे चेक कर लेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है। सही है तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर टिक कर देंगे। एक एक करके सबको टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। नीचे यहाँ पर आपका फाइनल सबमिट आ जाएगा। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तब आपको यहाँ पे कोर्स और सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करना पड़ेगा। मीन्स आपका कोर्स में PhD है, PhD में कौन सा है, फिर आपका सब्जेक्ट क्या है वो आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट आएंगे तब आपको फ़ी और भी कुछ और डिटेल्स डालना है। जैसे कि आपका एक उर्दू प्रूफ का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो अवेलेबल है तो वो डालेंगे, नहीं तो जो भी चीज़ें यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपकी आएंगी। उन सभी को देख कर आप एक एक करके सारा जो भी अप्लीकेबल है उसे अप्लाई करते जाएंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल जैसे ही सबमिट करेंगे तब आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। मीन्स फाइनल सबमिट करने के बाद इस तरीके का स्क्रीन आपको दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर पे फ़ी का ऑप्शन, दो चीज़, एक व्यू रहेगा, दूसरा पे फ़ी का। व्यू का मतलब है कि अपने एप्लीकेशन में जो भी डिटेल्स दिया है वो सारा डिटेल्स यहाँ पर शो होगा। और पे फ़ी पर जब हम आएंगे तो उस पर हमें फ़ी पेमेंट करना हो। आप फ़ी पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ATM पिन या इंटरनेट बैंकिंग किसी भी सोर्स से कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल दूसरी चीज़ों में पेमेंट होता है उसे ही पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा कि आपसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो इस तरीके से आपका फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मतलब आपने फॉर्म अप्लाई का जो भी स्टेज होता है उसको अचीव कर लिया है। अब आपको वेट करना है एंट्रेंस टेस्ट के एडमिट कार्ड का और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। चलिए, ये तो प्रोसेस हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे।
کہ किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें पीएचडी के लिए हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 20 सीट है। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम अगला से बढ़ेंगे तो वो साइंस डिपार्टमेंट की तरफ जब हम आएंगे स्कूल ऑफ साइंस में, तो वहाँ आपके लिए टोटल पीएचडी की जो पार्ट टाइम पीएचडी की 34 सीटें हैं। स्पेशलाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CIT के, यहाँ पे सिर्फ 3 सीटें हैं। नेक्स्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी स्कूल ऑफ एजुकेशन में पीएचडी के लिए टोटल 37 सीट है। यहाँ आपको उसके रिगार्डिंग भी किस सेक्शन में, किस स्पेशलाइजेशन में, किस एरिया में कितनी सीटें हैं वो आपको दिखाया जा रहा है। उसके अलावा एक और लास्ट जो दक्कन स्टडीज़ यानी दक्कनियात के बारे में जो रिसर्च होते हैं वो भी मानू में अवेलेबल है और उसमें टोटल 5 सीटें हैं पीएचडी के लिए। अब हम ये किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं वो जान चुके हैं। अगला सेक्शन अब हमारा आता है कुछ इन्फॉर्मेशंस के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। क्या क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये तो पीएचडी है, पीएचडी में कोई भी एज लिमिट नहीं होता है, तो यहाँ पर भी कोई एज लिमिट नहीं है। मोड ऑफ एडमिशन क्या है? आपका मोड ऑफ एडमिशन एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू, 2 चीज़ें हैं। एंट्रेंस में आपका जो मार्क्स आएगा और इंटरव्यू में जो आएगा उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। कुछ लोगों का एंट्रेंस एक्सेप्शन भी है, हम उसका आगे बताएंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए लिंक आपको यूनिवर्सिटी के इस वेबसाइट पे www.manu.edu.in पर आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन का फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आपको लॉगिन आईडी मिलेगा, उसी लॉगिन से आप अपना हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम तक का हो गया। अब कुछ और इंस्ट्रक्शन हम जान लेते हैं अलग से। क्वालिफ़िकेशन क्या होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम है। क्वालिफ़िकेशन में कैंडिडेट का है कि उसके मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स कम से कम, तभी वो एलिजिबल होंगे। दूसरा ये है कि फॉर एजुकेशन, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं उनके लिए ज़रूरी है कि एमएड और एमए इन एजुकेशन इनमें से 55% मार्क्स होनी चाहिए, तभी वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है एज रिलैक्सेशन में या मार्क्स रिलैक्सेशन में वो सब भी अप्लाई होगा। जनरल एलिजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें से सबसे ज़रूरी है कि मानू में एडमिशन इस पार्ट टाइम में कोई कॉमन स्टूडेंट नहीं ले सकता है, बल्कि जो प्रोफेशनल्स हो और वर्किंग इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, मैनेजरियल स्टाफ हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एंटरप्रेनर हो, स्टार्टअप प्रमोटर हो, इन्वेटर्स हो या एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों से इनमें जो लोग हैं वही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट वगैरह, जैसे गवर्नमेंट का डिफेंस में कल्चर, फाइनेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन वगैरह, इनमें से किसी डिपार्टमेंट वगैरह में कोई है तभी हो सकता है। या फिर NCERT, SCERT, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल एंटरप्रेनर है या NGOs हैं, उनमें से किसी एक से होना चाहिए। और उनका मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे। और एक और अहम चीज़ कि अगर पार्ट टाइम में स्पॉन्सर या सेल्फ फाइनेंस वाले पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। बाकी चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें कि आपको अपना NOC देना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी में आपको रहकर शुरुआत के 6 महीने में क्लास करनी होगी, अपने यहाँ से छुट्टी भी लेना पड़ेगा यानी लीव पे रहना पड़ेगा। चलिए, उसके अलावा एक और अहम चीज़, अच्छा ये स्कॉलरशिप का तो बता दिया गया। हाँ, एक और अहम चीज़ कि आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराया जाए, कोई हॉस्टल फैसिलिटी आपके लिए नहीं है। ड्यूरेशन क्या होगा यानी कितने टाइम का होगा, तो जैसे जो रेगुलर का होता है उसी तरीके से इसका भी है।
कि 3 साल, कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल के बीच में आपको करना होगा। लोकेशन ये आपका सिर्फ और सिर्फ मानो के मेन कैंपस हैदराबाद में है, मानो के ऑफ कैंपस दूसरे कैंपसेस में ये नहीं है, सिर्फ हैदराबाद में ही आपको ये कोर्स करना होगा। बाकी एक और अहम चीज़ वो ये कि क्या कैंडिडेट के लिए मार्क्स का जो वेटेज है वो क्या है इंट्रेंस टेस्ट देने वालों के लिए। इंट्रेंस टेस्ट देने वालों के लिए जो लोग यूजीसी, CSIR, JRF क्वालिफाई है उनका 70 मार्क्स मिलेगा। बाकी और चीज़ें, ये सारी चीज़ दी हुई हैं, उनका आपको 70 मार्क्स मिलेगा। एमफिल जो किए हुए हैं उनका 50 मार्क्स मिलेगा। जो लोग नेट, सेट, SLET, गेट वगैरह जो क्वालिफाई है उनका भी 60 मार्क्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में है या फिर रिजर्वेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एप्लीकेबल है उन चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें भी एप्लीकेबल है जो दूसरे किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अप्लाई होते हैं। जो कैंडिडेट को जिन चीज़ों का बेनिफिट दिया जाता है वो सारी चीज़ें मानू में भी अप्लाई हैं। एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ है कि अगर आपको किसी तरह कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है admissionregular@manu.edu.in। आप इस पर मेल करके आपका जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी क्यूरी हो, आप उसे सोल्व कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें और हैं। फॉर्म अप्लाई करते टाइम में आपका फ़ोटो इतने साइज़ का होना चाहिए, इतने KB का होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वगैरह वगैरह। उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। फॉर्म आपका बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई होगा, ऑफलाइन में इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट एक चीज़ जो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक और बता दें कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि रजिस्ट्रेशन फ़ी, फॉर्म अप्लाई के लिए फ़ी ये आपका 1500 रुपये है। एडमिशन फ़ी आपका ये 5000 रुपये लगेगा। कोर्स वर्क फ़ी आपका 2 साल का जो कोर्स वर्क फ़ी है वो आपका टोटल 20,000 रुपये लगता है। 5,000 पर कोर्स यानी पर सेमेस्टर कह लें, हर 6 महीने पे। एक सेमेस्टर का फ़ी जो आपका 22,000 रुपये है। टॉपिक मॉडिफिकेशन या फिर सिनॉप्सिस रीसबमिशन, सिनॉप्सिस दोबारा से सबमिट करते हैं या टॉपिक चेंज करते हैं तो फिर आपको 5,000 रुपये अलग से भी पे करना होगा। थीसिस जो फाइनल सबमिशन होगा, एवेल्युएशन फ़ी होगा, वो आपको 25,000 रुपये होगा। तो ये आपकी फ़ी के बारे में बात कर ली गई है। एक और चीज़ है यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज HOD का डिटेल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया हुआ है डिपार्टमेंट का, आप उन पर कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।